online classes of Vidya Bal Bhavan Senior Secondary School. Beta, in last video, that is video session 41, what you have done? Sir has told you, Pathak sir has told you the distance formula. The distance formula, how to find out the distance formula between the 2 points. Suppose if you have 2 points A and B, what is the formula of finding the distance between these 2 points? So suppose the coordinate of A is x1 y1 and the coordinate of B is x2 y2. Got it? So in that case, how will you find out the distance formula? The formula is distance between AB. Distance between AB means under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the distance formula which you have already done with the help of Pathak sir. Okay? Now in this video session 42, I would like to discuss the next exercise, that is exercise 7.2. But beta, before explaining exercise 7.2, I would like to discuss the section formula because the whole exercise is based on this section formula. Got it? So what is section formula? Suppose if you have 2 points, you can say A and B. Suppose you have 2 points A and B. Now join the line segment. This is the line segment AB containing A and B points. Okay. मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, कोई एक पॉइंट है P. P divides the line segment. P divides the line segment in the ratio. Beta, P divides the line segment internally. The word internally in the ratio m is to n. Call this m, call this n. मान लो ये जो P पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को m is to n रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है? अब कोऑर्डिनेट्स A के क्या है? x1 y1. कोऑर्डिनेट्स B के क्या है? x2 y2. और ये जो P के कोऑर्डिनेट्स है ना, आई कॉल दिस कैपिटल XY. मैंने इसको क्या माना है? कैपिटल XY. सो P divides the line segment internally in the ratio m is to n. Then coordinates of P. आप P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला है mx2 plus nx1 divided by m plus n. I am repeating the coordinate of coordinate of P. coordinate P के क्या? xy coordinates है P के, तो x कैसे निकालोगे? mx2 plus nx1 divided by m plus 1. In the same way, coordinates y के कैसे निकालोगे? This is the capital Y, this is the capital X. Here small x1, small x2 are the coordinates of A and B. Got it? And capital X is the coordinate of B. So in the same way, capital Y is my2 plus ny1 divided by m plus n. So this is called the section formula. This is called the section formula. इसमें क्या है? ये जो पॉइंट P है, ये मिड में भी हो सकता है और ये जरूरी नहीं है कि मिड में ही हो. ठीक है? दोनों केसेस है, मिड में भी हो सकता है और नहीं भी. अगर मिड में होगा तो रेशियो 1:1 की हो जाती है. रेशियो किसकी हो जाती है? 1:1 की. ठीक है? अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं कि सपोज यू हैव गिवन द A एंड B कोऑर्डिनेट्स, आपको रेशियो गिवन होगी, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो. इन द सेम वे एवरीथिंग इज गिवन टू यू, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. तो जो चीज अननोन होगी उसको वहीं छोड़ देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल. गॉट इट? So this is called the section formula. Section formula means if P divides the line segment AB in the ratio m is to n, then the coordinates of P written like this. आप coordinates of P को कैसे लिख सकते हो? इस टाइप से. तो this is called the section formula. I hope you understood.
understood very well. So now through exercise I will explain you further. Got it? Okay. So exercise 7.2, the entire exercise 7.2 is based on this section formula. Section का मतलब ही क्या होता है बच्चे? डिवीजन. किसी भी लाइन सेगमेंट का डिवीजन इज कॉल्ड द सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है. So now start with question number 4 because Sir has already done question number 1, 2, 3. So I am taking question number 4. Got it? So what the question number 4 is saying? Find the ratio. Underline the term ratio. You have to find the ratio in which the line segment joining the points. Line segment joining the points कौन से है? Read the question carefully. ये दोनों पॉइंट्स हैं जिन दो पॉइंट्स को जोड़कर एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है. Got it? So call this point A and this will be B. ध्यान से देखो बच्चे. तो A पॉइंट आपको गिवन है. What is A point? -3, 10. This is your A point and this is your B point. Got it बेटा? This is the line segment joining the points. ये तो लिखा हुआ है the line segment joining the points. तो ये line segment joining the points है. Is divided by -1, 6. इसका मतलब कौन सा पॉइंट डिवाइड करता है? P पॉइंट डिवाइड करता है. अभी सेक्शन फॉर्मूला में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. P डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट AP को इन द रेशियो m:n. यही था. ठीक है. तो मान लो वो जो P पॉइंट है वो क्या है? -1, 6. Got it? So अब मैंने इसको क्या बोला था? यहीं पे लेट करना आपने. ये x1, y1 है. ये आपके कैपिटल XY पॉइंट है और ये आपके पॉइंट कैसे? x2, y2 है. बेटा जैसे ही आपने ये लिखा ना वहीं पे आप पॉइंट्स को लिख लेना. इससे आपकी गलती नहीं होती है. ठीक है. आपको पता है कैपिटल A कैपिटल B पॉइंट्स जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं आप उसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल x1, y1 एंड स्मॉल x2, y2 से. और जो P पॉइंट डिवाइड करता है दिखा ना इज डिवाइडेड बाय. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये बीच में नहीं आएगा. नॉट इन द मिड, समवेयर एल्स इन द लाइन सेगमेंट, ऑन द लाइन सेगमेंट. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द XY पॉइंट, कैपिटल XY. क्यों? क्योंकि मैंने P को कैपिटल XY से डिनोट किया था when I have explained section formula to you. Got it? So you have to calculate the ratio. आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है. जब भी क्वेश्चन आता है सेक्शन फॉर्मूला से बेस्ड और पूछते हैं कि फाइंड आउट द रेशियो, तो आपको हमेशा रेशियो क्या लिखनी है? K:1. क्या है? K:1. हमेशा क्या लेट करोगे? K:1. तो लेट द रेशियो बी K:1. मान लो रेशियो क्या है आपकी? K:1 है. इन एवरीवेयर यू हैव टू राइट K:1 व्हेन जब आपसे पूछा जाए कि रेशियो निकालनी है. जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है तो आपको रेशियो क्या कंसीडर करनी है? K:1. अब आप देखो ये आपका क्या था? M था ना और ये आपका क्या है? N है. तो आप लिखोगे since P divides the line segment in the ratio K:1. जैसे वहां पे आपने लिखा था ना P divides the line segment in the ratio m:n in the beginning. आपने यही मेंशन किया था ना. अब यहाँ पे रेशियो क्या है? in place of m:n you have K:1. Got it? तो आप क्या करोगे? तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे? Therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे? कैपिटल X और Y. फॉर्मूला था ना कैपिटल X को निकालने का क्या था? mx1 mx2 plus nx1 divided by m plus n. This is the formula of calculating what? Capital X. And for capital Y, my2 plus ny1 divided by m plus n. Got it? So this is the formula of finding this. अब देखो जो हमेशा आपने यही वाला फॉर्मूला पुट करना है. ठीक है. सेम लाइन यू हैव टू राइट, सेम XY यू हैव टू राइट. तो फॉर्मूला यही रहेगा. अब आपको क्या क्या गिवन है देखो. यू हैव गिवन कैपिटल X. तो इन प्लेस ऑफ कैपिटल X कैन यू राइट -1 बिकॉज कैपिटल X क्या आपका? -1. एंड व्हाट इज M? M इज योर K x2 is what? x2 is 6 plus n is what?
and x1 is what? x1 is minus 3. So keep it in a bracket because the negative sign is there. M plus n. M is k, n is 1. So it becomes k plus 1. अब देखो minus 1 by 1. If nothing is in the denominator, you can write 1. Got it? 6k minus 3 divided by k plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. माइनस 1 को k प्लस 1 से करना है. माइनस 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है? k प्लस 1 से. एंड 6k माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो इट गिव्स 6k माइनस 3. नाउ ओपन द ब्रैकेट. माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3. नाउ 6k को इधर शिफ्ट करो तो इट इज पॉजिटिव. आफ्टर शिफ्टिंग इट बिकम्स नेगेटिव. माइनस 3 माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा. तो मैं इसको यहीं पे कर रही हूँ. माइनस 7k इज इक्वल टू माइनस 2. माइनस से माइनस कैंसिल. k की वैल्यू क्या आ गई? 2/7. k की वैल्यू क्या आ गई? 2/7. तो रेशियो निकालनी थी ना. तो रेशियो क्या थी आपकी? k:1 और k आपका क्या है? 2/7 रेशियो 1. तो 7 को आप उधर लिख सकते हो. तो 2:7. आपका आंसर क्या आ गया? 2:7. ठीक है. ये निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है. k की वैल्यू यहीं से आ गई ना. अल्टीमेटली यू वांट रेशियो. रेशियो आपकी आ गई है. आप यहां से भी करके देखोगे सेम ही आएगा. मैं करके दिखा देती हूँ. y इज व्हाट? y is 6. m is k. y2 is what? -8 plus n is 1. y1 is 10. k plus 1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 को k plus 1 से. -8k plus 10. तो ये हो जाएगा 6k plus 6 minus 8k plus 10. तो 6k plus 8k is equal to 10 minus 6. So it becomes 14k is equal to 4. अब देखो 14k is equal to 4 आया. तो k की वैल्यू क्या आ गई? 4/14 and 4/14 is what? 2/7. तो सेम आंसर आएगा तब भी. तो ये सिर्फ मैंने आपको क्रॉस चेकिंग के लिए बताया था कि आंसर वही आएगा. जब भी आपने रेशियो निकाली है ना, आप इसी की हेल्प से रेशियो निकाल सकते थे. ठीक है. ये करने की जरूरत ही नहीं थी. अगर कर देते हो तो गलत नहीं है. आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.2. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2. क्वेश्चन नंबर 5 इज, एंड बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You can say most important question of exercise 7.2. Question number 5. Find the ratio. सबसे पहली बात आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालनी है. अभी मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास क्वेश्चन है you have to find out the ratio. In that case what will you do? You just let the ratio be k:1. आपको रेशियो को क्या लेट करना है? k:1. Find the ratio in which the line segment joining the points. तो first of all I am drawing a line segment AB. This line segment joining the points 1, -5 and second point is -4, 5. अब मैंने आपको बताया था कैपिटल A, कैपिटल B points are given. Already this is given to you. So just let it x1, small x1, y1 and small x2, y2. In every question you have to do the same thing. Got it? हर जगह ऐसे ही मेंशन करना है इसको. स्मॉल xy, x1, y1 एंड स्मॉल x2, y2. आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन? इज डिवाइडेड बाय. डिवाइड क्या कौन करता है? कौन सा पॉइंट डिवाइड करता है? p पॉइंट डिवाइड करता है. इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस. कहते हैं x एक्सिस से डिवाइड है. ठीक है. तो बेटा इन गो बैक टू 9th स्टैंडर्ड. 9th स्टैंडर्ड में आपने किया था पॉइंट ऑन x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस. x एक्सिस पे अगर पॉइंट होता है तो पॉइंट कैसा होता है? x, 0. अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे पॉइंट कैसा होता है? 0, y. इन शॉर्ट यू कैन से दैट द पॉइंट ऑन x एक्सिस पे y पॉइंट 0 होता है. क्योंकि हम पॉइंट कैसे लिखते हैं? x, y पॉइंट होता है ना. यू कैन से द कोऑर्डिनेट्स. x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो ये एक पॉइंट बन गया ज्वाइन करके. तो अगर मैं पॉइंट x एक्सिस की बात कर रही हूँ तो वहां पे y 0 हो जाएगा. ठीक है. इन द सेम वे अगर मैं y एक्सिस की बात कर रही हूँ तो पॉइंट आप कैसे लिखोगे? 0, y. ठीक है. इन एग्जाम इन प्लेस ऑफ x एक्सिस आपका y एक्सिस भी आ सकता है. तो जब y एक्सिस आएगा तो आपको पॉइंट कौन सा लिखना पड़ेगा? 0, y. तो जो p पॉइंट है ना, p डिवाइडेड बाय x एक्सिस. तो p पॉइंट कैसा है? x, 0.
Why this point is x comma 0? Because P divides the line segment AB in the ratio k is to 1. रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है, तो रेशियो को k is to 1 आपने लिखा। ये x comma 0 क्यों लिखा? क्योंकि जो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है ना इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ये x एक्सिस से डिवाइडेड है, इसलिए यहाँ पे आपने x comma 0 लिखा। अगर यहाँ y एक्सिस होता तो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट 0 comma y। आप क्या लिखोगे? 0 comma y। Got it? Also find the coordinates of the point of division. Question क्या है? What you have to find? First of all, you have to find out the ratio. After getting the ratio, आपको ये भी निकालना है, x point पे निकालना है। Got it? Question समझ में आया क्या है? Now I'm doing the proof, or you can say the solution. Since P divides AB in the ratio, not since, let P divides AB in the ratio k is to 1. मान लो k is to 1 में डिवाइड कर रहा है, because you have to find out the ratio in this question ना। Okay, therefore coordinates of P के coordinates कैसे निकालते थे? same language I am writing. Got it? So इसको आप क्या बोलते थे? कैपिटल एक्स वाई। इसको आप क्या बोलते थे? कैपिटल एक्स वाई। गॉट इट? एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर एम एंड दिस इज योर एल। ठीक है, जो भी कंडीशंस है वहां पे मैंने लिख दी है कि इसको आप क्या बोलते थे। अब सेक्शन फॉर्मूला से करूंगी। कैपिटल एक्स कैन बी रिटन एज mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, और कैपिटल वाई कैन बी रिटन एज my2 plus ny1 divided by n plus n. Now what is capital X? Your capital X is small x. आपका capital X क्या है? Small x. So in place of capital X मैंने क्या लिखा? Small x. ठीक है, अब what is m? Your m is k. What is x2? x2 is your -4. Keep it in bracket plus n. n is what? 1. And what is x1? x1 is 1. Got it? Divided by k plus 1. तो x is equal to -4k plus 1 upon k plus 1. Call this equation star. Why I have marked this equation as star? Because nothing is given. आपके पास x भी unknown है, k भी unknown है, तो कोई वैल्यू तो निकल नहीं सकती। तो अब आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दो। ठीक है, अब ये कैपिटल Y. What is capital Y? Capital Y is 0. So in place of capital Y I have written 0. And what is m? m is k. And what is y2? Small y2 is 5. What is n? 1. And what is y1? y1 is -5. So keep it in bracket because the negative sign is there. जब भी आप कभी भी नेगेटिव में वैल्यू देखोगे उसको ब्रैकेट में हमेशा रखना। ठीक है, वहां से गलती नहीं होती। So it will be k plus 1. अच्छा देखो, 0 by 1 because nothing was in the denominator. Denominator में कुछ नहीं था, that's why I have written 1. So it will be 5k minus 5 divided by k plus 1. Now cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को k plus 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव 0. 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है। तो 1 को 5k minus 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इट गिव्स 5k minus 5. तो 0 इज इक्वल टू 5k minus 5. तो दिस इज -5, -5 इधर जाके +5, 5k. गॉट इट? सो 1 इज इक्वल टू k. तो 1 क्या आ गया? k की वैल्यू क्या आ गई? 1. तो जो आपकी रेशियो थी बेटा, रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो फाइंड आउट करनी थी ना, रेशियो क्या है? k is to 1. तो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट इज k? k is 1. तो रेशियो क्या आ गई? 1 is to 1. रेशियो क्या आ गया? 1 is to 1 की रेशियो आ गई. अब आपने क्या करना है? k की वैल्यू 1 कहां पुट करनी है? स्टार में. नाउ पुट k is equal to 1 in star. Why you are doing this thing? आप ये क्यों कर रहे हो? Because you have to find out the coordinates of point of division. इसके coordinates भी आपको निकालने हैं, point of division के coordinates भी निकालने ना, इसलिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज मैं यहीं पे स्टॉप कर देती. ठीक है, तो नाउ पुट k is equal to 1 in star. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन प्लेस ऑफ k you have to put 1. So -4 into 1 plus 1
1 plus 1, तो it becomes minus 4 plus 1 by 2, तो it becomes minus 3 by 2. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P means the point of division. कोऑर्डिनेट्स ऑफ point of division क्या हो गए? x की वैल्यू क्या है? माइनस 3 by 2, और क्योंकि ये x एक्सिस पे रहा, y तो 0 ही रहेगा. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा. कुछ भी नहीं करना था इसमें, एवरीथिंग इज गिवन. आपको रेशियो फाइंड आउट करनी थी और कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जहां पे वो डिवाइड हो रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2. बेटा एवरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आप 10 ईयर का सैंपल पेपर सर्च करोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी आया ही हुआ है. तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं बोल सकते कि इस क्वेश्चन को छोड़ दो कि इंपॉर्टेंट नहीं है. गॉट इट? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. बट बिफोर एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करवाना चाहती हूँ. टॉपिक इज रिलेटेड विद मिड पॉइंट. हाउ टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट. सपोज इफ यू हैव गिवन अ लाइन सेगमेंट AB. आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB. ठीक है, आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है. और P क्या है इसका? मिड पॉइंट. P क्या है? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. P क्या है? मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ A है x1 y1, स्मॉल x1 y1. कोऑर्डिनेट्स B के हैं x2 y2 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैपिटल XY. ठीक है, जैसे मैंने सेक्शन फॉर्मूला में आपको बताया था. ठीक है, अभी इसी चीज को मैं सेक्शन फॉर्मूला से कोरिलेट करूंगी. ठीक है, P क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB का है. तो अगर मैं मिड पॉइंट है तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालूं. P कैसा पॉइंट है? मिड पॉइंट है. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट कैसे? कैपिटल X. कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 बाय 2 और कैपिटल Y इज y1 प्लस y2 बाय 2. गॉट इट? तो ये जो कोऑर्डिनेट्स किससे निकाले थे आपने? मिड पॉइंट के. अगर आपको इफ यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स A एंड B, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स AB. गॉट इट? और आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एंड इट इज गिवन दैट P इज द मिड पॉइंट. तो आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल X can be written as x1 plus x2 by 2 and capital Y is y1 plus y2 by 2. Capital Y is y1 plus y2 by 2. एक चीज और है बेटा, यहाँ मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो यहाँ रेशियो है ना वो किसकी है? 1:1 की है. अगर आप सेक्शन फॉर्मूला में जाते हो और M और N के प्लेस पे 1:1 रख देते हो तो आपका फॉर्मूला यही डिराइव होगा ना. अगर रेशियो M और N की जगह आप 1:1 पुट करते हो तो वहां पे क्या होता है? ये क्या बन जाता है? मिड पॉइंट बन जाता है. ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला से ही कोरिलेट है. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 6, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken together, taken in order. मतलब ये जो vertices गिवन हुए हैं इनको ऑर्डर में लेना है. मतलब A, B, C, D. You cannot take A, B, C, D. You have to take in order. Got it? So find x and y. So I am drawing the parallelogram. Parallelogram A, B, C, D. What is A? 1, 2. B, 4, y. C, x, 6 and D, 3, 5. ठीक है, अब आपको इसके क्या निकालने? एक्स वाई निकालने. अब यहाँ पे देखो मैं कोई सेक्शन फॉर्मूला तो लगा नहीं सकती, नहीं फाइंड आउट कर सकती ना. मैं किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस भी नहीं निकाल सकती. अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस जगह हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, किस जगह हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और किस जगह हमने मिड पॉइंट लगाना है. ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ. जब भी कभी आपको इक्वी डिस्टेंट वर्ड हो या डिस्टेंस निकालना हो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे. जब कभी आपको कोई पॉइंट P डिवाइड करता हुआ डिवाइड वर्ड आ जाए, ठीक है, तो वहां पे आपने क्या निकालना है? सेक्शन फॉर्मूला. और इन केस ऑफ रेशियो ऑल्सो वहां सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे.
अब इस वाले क्वेश्चन में ना तो सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है ना ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, तो सिर्फ एक ये फॉर्मूला बचता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है? As you know that diagonals of a parallelogram bisect each other, ये आपको कंडीशन पता है 9th स्टैंडर्ड you did। As we know that diagonals of a parallelogram bisect each other। तो ये डायगोनल कौन से हैं? AC एंड BD आर दी डायगोनल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम ABCD। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट बेटा, ठीक है, ये नोट कर लेना। AC एंड BD आर दी डायगोनल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम। आपको पता है, मान लो यहाँ पे ये करना है एट O पॉइंट, तो आप ये बोलते थे ना OA is equal to OC and OB is equal to OD। In short you can say that O is the midpoint of the diagonal AC as well as BD। जो O है वो AC और BD का, डायगोनल AC और BD का मिड पॉइंट हो गया ना। So as we know that diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore coordinates of O के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? देखो, also midpoint of diagonal AC is equal to midpoint of diagonal BD। गॉट इट बेटा? आपने बोला है ना कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो पैरालेलोग्राम के होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ कहीं O पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे, तो आप ये बोल सकते हो कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि O is equal to OC and OB is equal to OD, ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो मिड पॉइंट AC के कैसे निकालोगे? देखो, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता था? x को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, फिर y को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे देखो AC की निकालनी, अब A का x कोऑर्डिनेट क्या है? 1, तो 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। ये AC के आगे ना x कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x कॉमा y। x कैसे निकाला है? देखो, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और इसके मिड पॉइंट निकालने हैं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो कैपिटल XY कैसे लिखोगे? कैपिटल XY को लिखते हो x1 प्लस x2 y2, और कैपिटल Y को लिखते हो y1 प्लस y2 by 2। तो वही तो मैंने किया और इसको ब्रैकेट में रखा है। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या किया है? 1 प्लस x कोऑर्डिनेट को ऐड किया, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, फिर 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब BD पे आ जाओ, B के x वाले 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y प्लस 5 या 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, एक ही बात है। y1 प्लस y2 और y2 प्लस y1 बोथ हैव द सेम थिंग। अब देखो, ये x कॉमा y है, ये भी x कॉमा y है, तो x को इक्वेट करेंगे, x को x के साथ और इसको इसके साथ। तो इसका मतलब 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x प्लस 1 7 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। इन द सेम वे 6 प्लस 2 इज 8 बाय 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y बाय 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो अब आप क्या कहोगे? x is 6 and y is 3। I hope you understood this question। इसमें कुछ नहीं करना था, you have to find out the mid points। अब इन शॉर्ट यू कैन से आपको x और y निकालने थे, तो x और y कैसे निकलेंगे? बिकॉज ABCD is a parallelogram, this is given to you, and you know that diagonals of a parallelogram bisect each other, that's why I have written midpoint of diagonal AC is equal to midpoint of diagonal BD, और midpoints निकाल के मैंने x और y की वैल्यू निकाली है। Thank you so much guys। Okay, now come to question number 7. Find the coordinates of point A where AB is the diameter of the circle. So I am drawing a circle because it is given that the question is based on the circle. Okay, O is the center of the circle and AB is what? AB is the diameter. तो मान लो ये this is the diameter
call this point AB and this is O point. And you know that center always lies in the mid of the circle. सर्कल के बीच में ही सेंटर होता है. तो O is the mid point of AB. यहाँ से आपको थोड़ी सी इंडिकेशन हिंट मिल गई होगी कि O क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का. ठीक है. एंड व्हाट इज सेंटर? सेंटर इज 2, -3. तो मैंने आपको बताया था सेंटर को आप किससे रेट करते हो, कैपिटल एक्स वाई से. ऑलवेज वट एवर इज इन द मिड कॉल दिस कैपिटल एक्स वाई. ठीक है. एंड B के कोऑर्डिनेट गिवन है, B इज 1, 4. ठीक है. इसका मतलब A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. लिखा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A. A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A बी x1, y1. मान लो वो क्या है, x1, y1 एंड दिस विल बी x2, y2. तो अब आप लिखोगे सिंस O is the center of the circle, therefore coordinates of O के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? O क्या है, मिड है, मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? कैपिटल X कैसे होता है, x1 प्लस x2 बाय 2. और कैपिटल Y कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2 बाय 2. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा. ठीक है. कैपिटल X कैसे निकालते हैं, x को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2. और कैपिटल Y कैसे निकालते हैं, y वालों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द मिड पॉइंट्स. गॉट इट. तो व्हाट इज कैपिटल X? So कैपिटल X is 2. So 2 is equal to x1. x1 is what? Unknown. Plus x2. x2 is 1 divided by 2. Now cross multiply. 2 to the 4. x1 plus 1. तो 4 minus 1 is equal to x1. तो 3 is equal to x1. x1 कितना आ गया, 3. In the same way capital Y. Capital Y is what? Capital Y is -3. So in place of capital Y, I have written -3. What is Y1? Y1 is unknown because we have to calculate. Y2 is what? 4 and 2. Now cross multiply. -6 is equal to Y1 plus 4. Plus 4 इधर जाके -4 हो जाएगा. तो Y1 की वैल्यू क्या आ गई, -10 is equal to Y1. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, आपको A के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे. So coordinates of A is given by x1. What is x1? 3. And what is y1? -10. Coordinates A के क्या आ गए, 3, -10. So with the help of midpoint, I have done question number 7. I hope you understood beta. Now come to question number 8. And beta, this question is most important. You can see question number 8 of exercise 7.2. If A and B are this and this respectively, मान लो ये A है और ये B है. Line segment joining the points -2, -2 and this will be 2, -4. ठीक है. Find the coordinates of P such that P कहाँ पर है, P lies on the line segment. बेटा यहाँ पे लिखा है कि जो P है वो line segment AB पर लाई करता है. But this is नॉट मेंशन कि जो P है मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट तो लगा नहीं सकते. ठीक है. क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि P जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट पे कहीं पे भी हो सकता है. इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है. तो P पॉइंट ये है. ठीक है. अब व्हाट कंडीशन इज गिवन, AP इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना बच्चे, AP इज इक्वल टू 3/7 AB. अब ये जो AB है वो आप इसको नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में. AP by AB is equal to 3/7. इसका मतलब AP कितना है, 3. ये कितना है, 3. गॉट इट, समझ में आया. और AB कितना है, AB कितना है बेटा, AB आपका है ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये कितना आपका 7 है. ये पूरी लाइन सेगमेंट 7 है और इतनी 3 है. तो बाकी बच रही 4 हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड. तो इसकी हेल्प से आपके पास क्या निकल के आ गया, आपके पास रेशियो निकल के आ गई. क्या निकल के आ गई, रेशियो. ठीक है. आपको क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. P के कोऑर्डिनेट्स है कैपिटल XY. P के कोऑर्डिनेट्स है कैपिटल XY. ठीक है. ये कंडीशन आपको गिवन थी. इस कंडीशन से आपके पास रेशियो आ गई. क्या किया था, AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB. तो AB नीचे आ गया, इट बिकम्स 3/7. तो AP 3 हो गया और ये पूरा आपको 7 था. तो इतना पोर्शन 4 हो जाएगा. ठीक है. तो
ये जो कंडीशन थी ना बेसिकली आपको रेशियो के लिए दी हुई थी, तो ये ध्यान से देखना था आपको। अब आपको क्या निकालने हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो सिंपली यू कैन डू। सिर्फ इतना ही पोर्शन था इसमें जो थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कैपिटल एक्स कैन बी रिटन एज mx2 plus nx1 divided by m plus n, और in the same way capital Y can be written as my2 plus ny1 divided by m plus n. Got it? So what is m? M is 3. x2 is what? x2 is, call this point, I am erasing this arrow, call this point x1 y1 and this point as x2 y2. Got it? यहीं पे आप मेंशन कर दिया करो, अलग से मत करना क्योंकि इजी होता है फिर देखना। What is m? m is 3. What is x2? x2 is 2, n is 4, x1 is -2 divided by 3 plus 4, comma what is y? Oh sorry, capital Y की क्या थे? my2. तो 3 y2 is what? y2 is -4. What is n? n is 4 and y1? y1 is -2. Got it? So 3 plus 4. So it becomes 6 minus 8 by 7. This is capital X and capital Y is -12 minus 8 by 12. 4 plus 3 7. So it becomes -2 by 7. This is capital X and capital Y is -20 by 7. 3 2 are 6, 4 2 are 8. Got it? So जो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे ना आपको, तो कोऑर्डिनेट्स P के क्या आ गए? -2 by 7, -20 by 7. This is the coordinates of P. Got it? I hope you understood. Exercise 7.2, question number 4 to 8. And take care guys. Watch the video very properly and be careful. Thank you so much. आज में बच्चे आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू वीडियो, ठीक है, तो थ्रू पोर्टल यू कैन आस्क योर क्वेरी। अगर पोर्टल के थ्रू नहीं कर सकते तो जहाँ पे बेटा वीडियो अपलोड होती है ना, तो वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स आता है, वहां पे कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी से रिलेटेड ओनली क्वेरीज कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, वहां पे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दोगे तो वहां से भी मैं आपकी क्वेरी पिकअप कर सकती हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।